کرپٹو مارکیٹ کے بل رن کا آغاز ہو چکا ہے اور مارکیٹ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ کرپٹو مارکیٹ میں کیسے پیسے کمایا جائے. لیکن جب کرپٹو مارکیٹ پیرابولک فیز میں جاتا ہے تو اس میں ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ پیسے کمانے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور پیسہ ہارنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے. آج ہم آپ کو یہ اسٹیٹسٹکلی ایک رپورٹ سے سمجھائیں گے کہ کس طرح آپ ان افراد میں شامل ہو سکتے ہیں جو کرپٹو مارکیٹ سے پیسے کماتے ہیں. تو اس رپورٹس میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کہاں پہ آپ نے کس طرح اور کس اسٹریٹجی کے ساتھ اس بل رن کا آپ نے اس میں شامل ہونا ہے اور پیسے کمانے ہیں. تو لیٹس ڈائیو انٹو دس کرپٹو مارکیٹ ڈیٹیل. آج جو اس رپورٹ جو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دا کرپٹو کمپیٹنس انڈیکس 2024 اور یہ دو ادارے ہیں جو ایک کا نام ہے کوائنفیشنز اور دوسرا کا نام ہے PIP ورلڈ. کوائنفیشن ایک سوشل میڈیا ٹویٹر کا ایک ہینڈلنگ ہے جہاں پہ لوگ آ کے انونیمسلی اپنے فرسٹریشن یا اپنے جو بھی کرپٹو مارکیٹ کے ساتھ ان کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں اس میں ڈسکس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو PIP ورلڈ ہے وہ آپ کو فائنینشیل لٹریسی ان دا فارم آف Web3 گیمنگ دیتی ہے. مطلب آپ اس کے اوپر Web3 گیم کھیلتے ہیں اور اس سے آپ کی فائنینشیل لٹریسی جو ہے نا وہ انکریز ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ رپورٹ ایک ان کوائنفیشن اور ان کی جو جوائن PIP ورلڈ ہے انہوں نے جوائنٹلی ایک سیمپل اسٹڈی لی ہے اور اسی کے اوپر یہ رپورٹ بیس کی ہوئی ہے. تو یہ رپورٹ آپ کو اس میں تقریباً 12,045 انونیمس کنفیشنز جو ہے نا شامل ہے اور یہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ مارچ 2022 سے لے کر اکتوبر 2024 تک ہے. تو اس میں وہ جو بل رن فیز ہے اکتوبر کے بعد جو بٹ کائن پیرابولکلی اوپر گیا وہ شامل نہیں ہے لیکن اس تک یہ اسٹڈی جو ہے نا وہ کنڈکٹ کی گئی ہے. اچھا اس میں بات کی گئی ہے کہ کوائنفیشن جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ وہی ایک سوشل میڈیا کا ہے اور اس میں جو فائنینشیل لٹریسی کی بات کی گئی ہے. فائنینشیل لٹریسی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ جو اپنا بجٹ کو سیونگ بجٹنگ اور فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے نالج رکھتا ہے اس کے بارے میں جانتا ہو اور ساتھ ساتھ وہ مارکیٹس کے جو ڈائنامکس ہے اس کو بھی جانتا ہے تو اس کو یہ فائنینشیل لٹریسی اس کے حساب سے کرتا ہے. تو آگے ہم بڑھتے ہیں. اس میں اگر اس ون پہ ہم آ جائیں تو اس میں لکھتا ہے دا کرپٹو کمیونٹی لیک دا گلوبل ایوریج ان میکنگ انفارم فائنینشیل ڈیسیژن. اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرپٹو کمیونٹی ہے نا وہ تمام جو مارکیٹ سے اور ممالک کے ساتھ اس کی کمپیریزن کی ہوئی ہے کہ اس کی جو فائنینشیل لٹریسی ہے وہ لیک کر رہی ہے. وہ کس طرح اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں جو یونائٹڈ اسٹیٹ ہے اس کی جو فائنینشیل لٹریسی ہے وہ 50% ہے جبکہ گلوبل جو ایوریج ہے فائنینشیل لٹریسی کا وہ 33% ہے. لیکن کرپٹو کمیونٹی جو ہے نا وہ اس کے اسٹڈی کے مطابق 25% جو ہے نا اس پہ بیس کرتی. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ٹوٹل کرپٹو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں اس میں جو ٹریڈ کرتے ہیں اس میں 25% وہ لوگ ہیں جو فائنینشیلی لیٹریٹ ہے اور 75% وہ لوگ ہیں جن کے پاس فائنینشیل لٹریسی نالج نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہیوج قسم کی ایک فائنڈنگ ہے اور یہ ہمیں کرپٹو مارکیٹ کے جو ڈائنامکس ہے ان سے نظر بھی آتا ہے کہ مطلب فوراً جو ہے نا وہ گر جاتا ہے فوراً اوپر جالا جاتا ہے. یہ جو ولیٹیلیٹی ہے یہ بھی یہ شو کرتی ہے کہ جو اس میں لوگ ہیں وہ ریٹیل لوگ ہیں جن کے پاس فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے اور یہ اسٹڈی بھی اس کو کنفرم کر رہی ہے. اس کے علاوہ اگر اس میں یہ دیکھیں تو آگے اس کی جو چارٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس میں ڈنمارک اور ناروے 71% فائنینشیلی لٹریٹ ہے, کینیڈا اور اس کے بعد. لیکن اس کے ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف وہ ممالک جو کرپٹو کمیونٹی سے ہے وہ صومالیہ, افغانستان اور یمن ہے جن کی سب سے کم فائنینشیل لٹریسی ہے. تو یہ تو اس کی فائنڈنگ ہے اور یہ ہمیں نظر بھی آتا ہے کرپٹو مارکیٹ کی جو ولیٹیلیٹی ہے اس سے بھی ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ اس میں فائنینشیلی لٹریٹ لوگ کم ہے اس لیے اس میں اپ اینڈ ڈاؤن بہت زیادہ ہے. چلیے ہم اس کے سیکنڈ پارٹ پہ جاتے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں کہ the crypto community is steering behind. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ جو فائنینشیل لٹریسی ہے inside in the crypto community اس میں جو ڈفرینٹ گروپس ہے وہاں پہ فائنینشیل لٹریسی کا کیا حال ہے. تو اس اسٹڈی نے اس کو بھی دیکھا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ دکھا رہا ہے کہ جو اسپیکولیٹر ٹریڈر ہے اسپیکولیٹنگ ٹریڈنگ جو لوگ کرتے ہیں اس میں 64% لوگ جو ہے نا وہ فائنینشیلی لٹریٹ ہے اور باقی فائنینشیلی جن کی فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے. پمپ اینڈ ڈمپ میں 45% لوگ ہیں. دا ہولڈرز وہ ہوتے ہیں جو کائنس کو ہولڈ کرتے ہیں 85% فائنینشیل لٹریٹ ہے. دا فورمو ٹریڈر کے 100% ہے. اس سے میں ڈس ایگری ہوں کیونکہ فورمو ٹریڈر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جب کوئی چیز پمپ ہو جاتا ہے اور وہ فیئر آف مسنگ آؤٹ کے اس میں فیز میں ہوتے ہیں تو وہ تب بائی کرتے ہیں. اس کے طرف مطلب وہ فائنینشیل لٹریسی اگر ان کی ہوتی تو شاید وہ اتنا, لیکن لیٹس یہ تو اس کی فائنڈنگ ہے, اس سے ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے. دا ولیٹیلیٹی سیکر جو ہے نا 50% یہ بھی فیئر انف ہے کیونکہ ولیٹیلیٹی سیکرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ یا تو ایک
कोई कॉइन पंप हो जाता है और पीक पे पहुंचता है तो लोग उसको बाय करते हैं, या बिल्कुल डंप हो जाते हैं तब उसमें एंटर करते हैं, तो ये वोलेटिलिटी। द ट्रेंड होल्डर, अब ये एक बड़ी कैटेगरी है। द ट्रेंड होल्डर, ट्रेंड फॉलोवर, जो ट्रेंड फॉलोवर होते हैं जिनको मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, 88% वो लोग होते हैं जो ट्रेंड फॉलोवर होते हैं, वो 88% फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं। द डे ट्रेडर, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब आपको हर जगह सिग्नल दिए जा रहे हैं, आपको डे ट्रेड कराया जा रहा है, हर जगह आपको ये बताया जाता है कि आप मतलब ये सिग्नल लो, ये फॉलो करो। हर बंदा डेली ट्रेड करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। तो इस स्टडी ने भी ये कंफर्म किया कि उस जो फाइनेंशियली लिटरेट लोग होते हैं वो 27% लोग हैं जो इस तरह के ट्रेड करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट द वेल ट्रेडर, वेल ट्रेडर जो है ना वो लोग होते हैं जो सबसे पहले ये चीज़ को लिए हुए हैं और उसके वेल जायंट होते हैं, 96% फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं। तो मैं अगर ये 3 कैटेगरी आपको बता दूं जिसमें से मैं 2 ले लेता हूँ, एक होल्डर 88% फाइनेंशियल लिटरेट और एक जो द वेल है उसकी, और दूसरी द ट्रेंड फॉलोवर। तो ये इस स्टडी से भी ये कंफर्म हो रहा है कि अगर आप इस क्रिप्टो मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप, अगर आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी तो आप इन 3 कैटेगरी में जाएंगे। आप या वेल होंगे, या ट्रेंड फॉलोवर होंगे, और या द होल्डर होंगे। और फोमो, सो मैंने आपको कहा कि मैं इससे डिसएग्री हूँ, तो मैं भी इसने लिया हुआ है, लेकिन आगे हम इसके देखते हैं कि इसका विनिंग रेट क्या है। अच्छा, इस फर्दर इसमें यही कि ये तो वही चीज़ है कि जो पंप एंड डंप और इस डिफरेंट कैटेगरी के अंदर बाइफिकेशन क्या है। तो पंप एंड डंप स्कैमर कंप्राइज 18% एक्सप्लॉइट द मार्केट ऑफ प्रॉफिट एंड 45% फाइनेंशियल लिटरेटली क्लोज एज यूएस एवरेज। तो हम इसका ये तो हम कर चुके हैं, हम अगर आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट इसने बताया कि जो स्ट्रेस बट स्टेइंग फॉर द राइट, स्ट्रेस बट स्टेइंग फॉर द राइट का मतलब ये है कि क्योंकि कॉइनफेशन पे ऊपर लोग जो है ना, कितने लोग हैं कि जो ट्रेड के बाद स्ट्रेस शो करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ह्यूज बट अनसरप्राइजिंग 7 in 10 70% हाईलाइटेड लॉसेस। जो कॉइनफेशन पे लोग आते हैं और वो अपना मतलब कमेंट करते हैं, तो वो कहते हैं कि 70% वो लोग होते हैं जो कि लॉसेस के बारे में बोलते हैं, लॉसेस को एक्सप्रेस करते हैं। 30% वो लोग होते हैं जो कि इस तरह के मतलब विन के ऊपर आते हैं। इसी तरह अराउंड 76% एक्सप्रेस रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन एंड अंडरलाइंग स्ट्रेस एंड अलाइनिंग ए जर्नल मेंटल। जैसे तो कॉइनफेशन के ऊपर जो लोग आते हैं क्रिप्टो ट्रेड के बाद, तो कह रहे कि 76% लोग होते हैं जो रिग्रेट शो करते हैं और स्ट्रेस्ड होते हैं। इसने डिफरेंट इस पे अपना वो कॉइनफेशन की वो भी बताई है कि वो जो रिग्रेट शो करते हैं वो कौन लोग होते हैं। ज़्यादातर मीम काइन के जो ट्रेडर होते हैं, रकफुल से जो हिट होते हैं, और कुछ लोग होते थे जो बैंक से लोन लेके जो है ना वो ट्रेड करते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस चार्ट में मुझे समझ आ रही है, वो है कि हाई फाइनेंशियल लिटरेसी इज ए की ड्राइवर ऑफ सिग्निफिकेंट विन इन द क्रिप्टो मार्केट। अब ये जो है ना, ये इसमें ये बताया जाता है इन ग्रुप्स में। तो अगर आप ये देखें, इसमें कौन से वो लोग हैं कि जो फाइनेंशियल लिटरेट होते हैं और वो विनिंग का क्या उसका रेशो है। तो आप सबसे पहले देखें कि टोटल जो क्रिप्टो कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो 70% लोग जो है ना वो पैसे हारते हैं और 30% लोगों की विन होती है। ये तो ओवरऑल जो क्रिप्टो कम्युनिटी। इसमें जो स्पेकुलेटर है, स्पेकुलेटर वो लोग होते हैं जो चीज़ों को स्पेकुलेट करते हैं कि ये अभी ऊपर जाने वाले, ये पंप होने वाले जाने वाला है। तो इसमें 82% लोगों का लॉस होता है, 18% लोग जीतते हैं। पंप एंड डंप वही 83% जो है ना वो 83% लॉस करते हैं पंप एंड डंप पर, 17% जो है ना वो जीतते हैं। द होल्डर की सबसे 34%, ये अभी भी मतलब कम है, लेकिन इस पर दिस स्टडी 34% लोग जो होल्डर होते हैं जो मतलब कॉइन को लेके बेचते नहीं है, 34% की प्रोबेबिलिटी है, 66% लॉस की प्रोबेबिलिटी है। अब देखें फोमो ट्रेडर, अब वहाँ पे 100% फाइनेंशियल लिटरेट बताते हैं, इसलिए मैं इससे डिसएग्री था, क्योंकि अब ये देखें 85% लोग, तो फोमो ट्रेडर की 85% लॉस होती है अगर जो लोग कॉइन पंप होता है वो एंटर करते हैं, और जो इसमें कॉइन डंप हो और इसमें एंटर करते हैं, मतलब उसको फोमो ट्रेडर कहते हैं। स्पेशली जो फोमो वो लोग होते हैं जो कॉइन पीक पे जाता है उसमें ट्रेड करते हैं, तो 85% उन लोगों की लॉस होती है। वोलेटिलिटी सीकर वही जो वोलेटिलिटी को देखते हैं, कोई चीज़ की स्ट्रीम ली गई है तो वही 97% लोग लॉस करते हैं। द ट्रेंड फॉलोअर जो है ना, वो ट्रेंड फॉलोअर की 40% प्रोबेबिलिटी है कि वो जीतेंगे। अब देखिए इसमें बाकी द डे ट्रेडर स्पेशली जो रोज़ जो है ना अपने आप को डे ट्रेड मतलब अपने आप को बिजी रखते हैं, ट्रेड करते हैं, वो 89% लॉस करते हैं। और द वेल्ड जो है ना वो उसकी 59%। इसमें 2 कैटेगरी, फिर वही कैटेगरी आ जाती है। देखिए जो जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो कौन कौन है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वेल्ड
वेल सबसे ज़्यादा 41% जीतते हैं। इसके बाद द ट्रेंड फॉलोअर 40% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो जीतेंगे, और द होल्डर 34% प्रोबेबिलिटी है कि वो जीतते हैं। और इसके अलावा जितने भी कैटेगरी है, जो डेली ट्रेडर और मतलब आप जितना भी वो कैटेगरी है, वो सारे लॉस ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंटली लॉस में जाते हैं। अच्छा, इसमें अब इस यहाँ पे ये बात कर रहे हैं द फर्ड टूवर्ड मेजर एंड मीम काइन स्ट्राइप। अब ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी है, लेकिन मैं इसमें 3 चीज़ें इन्होंने बताई कि इसका फर्ड ज़्यादा होता है। नेगेटिव फर्ड उसे कहते हैं जिसकी सेंटिमेंट ज़्यादा होती है, कॉइन फिशन पे जो सेंटिमेंट आती है वो कौन से काइन है। एक तो बिट काइन है, इसका जो फर्ड है वो सबसे ज़्यादा है, इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल आता है। और इसके बाद इथीरियम है, और इसके बाद मीम काइन है और सोलाना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट एक और है कि FTX के नेगेटिव 100% नेगेटिव फर्ड है, वो इस वजह से कि FTX कोलैप्स हो गया था। आपको पता था लास्ट ईयर जो है ना इसकी जो है ना फाइनेंशियल मार्केट जो क्रैश हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा ये हेड हुआ गया था, तो ये ऑब्वियसली इसमें ये आ जाता है। तो इसका मतलब है कि वो ये 3 कैटेगरी है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, और मैं खुद इन तीनों को लेता हूँ क्योंकि इसका ज़्यादा सेंटिमेंट्स है। एक BTC है, इथीरियम है, मीम काइन है और सोलाना है। तो मैंने भी अपनी पोर्टफोलियो इसी तरह की कि 90% मेरे जो सोलाना है, इथीरियम में है, और बाकी जो है मीम काइन है। तो यहाँ पे भी ये कंफर्म हो रहा है कि इसी का फर्ड है, इसमें लोग ज़्यादा डिबेट करते, इसी पे ज़्यादा डिस्कशन होती है। तो ये वो काइन है जो इस पर स्टडी डिस्कशन हो रही है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गई है NFTs की भी कुछ है, लेकिन मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट फेज़ है इसमें जो लास्ट इसकी बताई जा रही है वो ये है कि ऑल्दो एक क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग पैसे हारते हैं, बहुत कम लोग पैसे जीतते हैं। जैसे कि 70 और 30% हमने देखा कि क्रिप्टो कम्युनिटी में लोग पैसे हारते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कह रहे हैं कि 40% लोग फिर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट मतलब जब बुल रन खत्म हो जाता है तो 40% वो इस मार्केट में, तो ये पॉजिटिव साइन है कि इसमें एक रोबस्टनेस, जो ट्रेडर है वो डिटरमिन्ड होते हैं, वो मार्केट को छोड़ते नहीं है, 40% वापस आ जाता है। लेकिन उस 40% में जो वापस आने वाले लोगों में सबसे ज्यादा कौन से आते हैं, तो फिर वही होल्डर जो है ना वो 32% है। 32% इस 40% का 32% होल्डर है जो वापस आ जाते हैं। स्पेकुलेटर 19% है, फॉर्मर ट्रेडर 16% है, वोलेटिलिटी जो है ना सीकर 19% है। तो ये इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव साइन है कि मतलब ये जो लोग हैं ना वो मार्केट में वापस आ जाता है। ये तो पूरे मार्केट। इसका मैं थोड़ा सा एक एंड नोट देना चाहूँगा, स्टडी से क्या मतलब है। मेरे एक वीडियो है, आप जा सकते हैं, मैंने उसे कहा था कि 95% लोग जो क्रिप्टो सिग्नल का ट्रेड करते हैं, जो डे ट्रेडर हैं, वो हारते हैं। और वो स्टडी से कंफर्म भी हो गया, क्योंकि स्टडी में यही चीज़ बताई जा रही है कि मतलब ये जो है ना आपको, जैसे एक चार्ट्स में हमने दिखाया कि आपको जो है ना इतने लोग जो है ना पैसे हारते हैं। अब आप इसमें विनर कहाँ से होते हैं, यही 3 कैटेगरी है। मैं आपको बता दूं कि आप जो मर्जी कर ले, आप कुछ भी ना करें, इन 3 कैटेगरी, या तो आप होल्डर बन जाए, या तो आप वेल बन जाए, और या फिर ट्रेंड फॉलोअर बन जाए। अब वेल तो आप बन नहीं सकते, अगर आप रिटेल है, आपके पास पैसे इतने नहीं है, तो आप वेल नहीं बन सकते, इनिशियल प्रोजेक्ट्स का आपको पता नहीं होगा। ट्रेंड फॉलोअर आप जरूर बन सकते हैं। आपने ट्रेंड में मतलब हमेशा हम एक साइकी होती है कि लोग जो पैसे है ना वो जब वो नीचे जाता है तो वो होल्ड भी करते हैं और उसमें ज्यादा पैसे भी डालते हैं। लेकिन इसका अपोजिट आप करें, वो काम करें जो 90% लोग नहीं करते। वो ये क्या काम है कि आप जो है ना जब कोई चीज ऊपर जा रही है उसमें आप अकोमुलेट करें, उसमें पैसे डालते रहें और अपना ट्रेड को बिग कर दे, बजाय इसके कि उससे प्रॉफिट निकाले। क्योंकि हमारी साइकी होती है हम फौरन प्रॉफिट निकाल लेते हैं और ट्रेड से निकल जाते हैं, लेकिन जब लॉसेस होते हैं तो उसको होल्ड करते हैं। तो ट्रेंड फॉलोअर वो होते हैं कि अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो वो अकोमुलेट करता है, वो उस चीज को दोबारा बाय करता है और अपने ट्रेड को साइज बढ़ाता है। और अगर आप मतलब दूसरी साइड पे हैं तो आप अपने मतलब उसी तरह शॉर्ट करते हैं और फिर उसकी साइज बढ़ाते हैं। लेकिन वो तो चूंकि फ्यूचर में है तो स्पॉट अगर आप ट्रेडर है तो आपको बुल रन में अपने जो पोर्टफोलियो उसको अकोमुलेट करना होता है, फेज बाय फेज उसमें चीज़ें बढ़ानी होती है, तब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो ये एक सरप्राइजिंगली रिपोर्ट था और इसमें आपको मैंने बताया कि लोग पैसे हारते हैं, जो कि इस मार्केट में एक डिलेमा है कि हर बंदा ये कहता है कि मैं जो है ना मैं पैसे कमाऊंगा या मैं ऐसे, लेकिन इतना आसान ये नहीं है। आपको फाइनेंशियली लिटरेट बनना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल मार्केट को समझना पड़ेगा। और ये चैनल इसीलिए मैंने बनाया कि आपको मैं फाइनेंशियली लिटरेट कर दूं। मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो फाइनेंशियल कंटेंट लेके आऊँगा जो स्पाइसी इतना नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आप प्रिफेयर होंगे, आपके अगले बुल रन में ज़रूर पैसे बनेंगे। अगर इसमें नहीं बने इसमें भी बनेंगे, लेकिन अगर आप उस तमाम फोमो ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग से निकल आए और आप अपने आप को पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करें, सीखे इस चीज़ को, जितना आप सीखेंगे इतना ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आपने इस वीडियो में ज़रूर मुझे बताना है इस वीडियो के बारे में, और आप अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि मुझे फीडबैक मिले। मैं आपके लिए इससे बेहतर कंटेंट लेके आऊँगा, आपको बेटर एजुकेट करूँगा। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि मुझे एक इंसेंटिवाइज करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे फीलिंग हो कि आप देख रहे हैं, क्योंकि देखने वाले लोग ज़्यादा है, सब्सक्रिप्शन वाले लोग कम है। कमेंट
कमेंट्स भी बताएं चीज़ें। थैंक यू सो मच अगेन कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।